الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیشہ سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ ہونا چاہیے جو لفظی اس کے معنی ہے. دوسرا اس کا مطلب ہماری جو صحبت ہے، ہماری جو کمپنی ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی ذات پر اس کے ماحول کا، آس پاس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے. بلکہ انسان کا نہیں، جانور پر بھی اثر ہوتا ہے. جانور بھی جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر لیتا ہے. اور ایون کہ جانوروں کے علاوہ پھلوں سبزیوں میں بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو ماحول کا اثر انسان پر بھی ہوتا ہے، ماحول کا اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے، ماحول کا اثر پھلوں سبزیوں ترکاریوں میں بھی ہوتا ہے. مثال، ایک جانور آپ پال لیتے ہیں جو آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، اس کی طبیعت اور ہوتی ہے. اس کے بنسبت ایک وہ جانور جو جنگل میں رہتا ہے اس کی طبیعت اور ہوتی ہے. جو آپ نے رکھا ہوا ہے، گلی محلے میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، مل کے رہتا ہے، اس کی طبیعت میں انس پیدا ہو جاتا ہے، وہ مانوس ہوتا ہے جانور. اور ایک وہ جو جنگل میں ہے، اس نے انسانوں کو نہیں دیکھا، وہ کسی کے ساتھ رہا نہیں، اس کی طبیعت میں وحشت ہوتی ہے. وہ انسانوں کو دیکھے گا تو دوڑے گا، ڈرے گا. اور یہ جو انسانوں میں رہتا ہے، یہ انسانوں کو دیکھ کے مانوس ہے، اس کی طبیعت مانوس ہے، یہ انسانوں سے مانوس ہے. بلکہ انسان پیچھے چلے گا تو یہ اس کے پیچھے چلے گا. انسان اس کو جدھر لے جائے گا ادھر جائے گا، جو اس سے کام لے گا یہ کام دے گا، جو کہے گا وہ کرے گا. اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح کوئی برڈز جو ہیں وہ پالے ہوئے ہیں، پرندے پالے ہوئے ہیں، وہ اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کو سمجھتے ہیں، ان کے مطابق بساقہ تو بولتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ صحبت کا اثر، کہ ان کی صحبت نے اس میں اثر کر دیا. اسی طرح پھلوں سبزیوں میں بھی ایسا ہی ہے. جیسے مثال مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو اگر صحیح سبزی ہے، صحیح پھل ہے، اس کے ساتھ باقی بھی ٹھیک ہے. اگر ایک خراب ہے تو باقی بھی خراب ہے، باقی بھی خراب آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے. جب خراب خربوزے کے ساتھ خراب رکھ دیا، خراب آم کے ساتھ خراب آم رکھ دیا تو ایک دن میں وہ بھی خراب ہو جائے. اس میں بھی اثر پکڑ لینا ہے. جس طرح کہتے ہیں تالاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو سب کو گندی کر دیتی ہے. اثر ہے. یہ کیا ہے؟ اثر ہے. تو انسان کی طبیعت پر، جانور کی طبیعت پر، اسی طرح سے کسی بھی چیز پر ماحول کا اثر ہوتا ہے. ماحول کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. باطنی بھی، روحانی بھی اور ظاہری بھی اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی مہینہ ڈیڑھ پہلے جب ہم بیٹھتے تھے بغیر پنکھے کے بیٹھتے تھے، بغیر اے سی کے بیٹھتے تھے، ماحول ایسا تھا، ہماری طبیعت اس کے مطابق تھی. ابھی ماحول ایسا ہے کہ ہم پنکھے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. ہماری طبیعت نے اس ماحول کے چینج کو قبول کر لیا. ہمارے ماحول کے چینج کی وجہ سے ہمارے اندر چینج آ گیا. ہم تھے ویسے ہی ہم تھے، وہی مہینے ڈیڑھ پہلے کا وقت تھا، ہمیں پیاس نہیں لگتی تھی. اب وہی ہم ہیں، ماحول چینج ہوا، ہمیں پیاس بھی شدت سے لگتی ہے، ہمیں پانی کی طلب رہتی ہے، ہمیں پنکھے کی ضرورت ہے، ہمیں اے سی کی ضرورت ہے، ہمیں سائے کی ضرورت ہے. پہلے ہم دھوپ تلاش کرتے تھے، اب ہم سایہ تلاش کر رہے ہیں. تو انسان کی ظاہری باطنی ہر لحاظ سے انسان اثر کو قبول کرتا ہے، اور بلکہ ہر شے جو ہے وہ اثر کو قبول کرتی ہے. یہی اگر سردیاں ہوتی ہیں، دھوپ میں بیٹھتے ہیں، آپ کے چہرے پر، آپ کے رنگت پر کوئی خاص چینج نہیں آتا، اثر نہیں ہوتا. لیکن یہی گرمیاں ہیں
जब आप ज्यादा देर धूप में रहते हैं आपका रंग चेंज हो जाता है, कलर जो है वो चेंज हो जाता है, आपके जिस्म पर उसका वाज़ेह असर नजर आता है। तो इसलिए माहौल का असर इंसान की तबीयत पर, इंसान के जिस्म पर, इंसान के बातिन पर यह जरूर पड़ता है। तो इसलिए कुरान ने हुक्म दिया कि तुमने अपना माहौल सिलेक्ट करना है कि किस माहौल में तुम रहना चाहते हो। तुमने माहौल, अच्छा माहौल चूज करना है, अच्छा माहौल तुमने लेना है, अच्छे लोग तुमने चुनने हैं, किन लोगों के साथ तुम रहोगे, क्योंकि जैसी सोसाइटी, जैसे लोगों के साथ रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता या तो तुम उन्हें खींच लोगे या वो तुम्हें खींच लेंगे, क्योंकि सोहबत का असर तो होगा, सोहबत का असर तो होगा। अगर अट्रैक्शन, कशिश आप में ज्यादा है तो आप खींच लेंगे, अगर अट्रैक्शन और कशिश दूसरे में ज्यादा है वो आपको खींच लेगा, लेकिन होगा जरूर कि एक दिन आप उसके रंग में रंग जाओगे या वो आपके रंग में रंगा जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या है, माहौल का चेंज इंसान को चेंज करता है, माहौल की तब्दीली इंसान को तब्दील करती है, इंसान का दोस्त उसको चेंज करता है, इंसान का घर का माहौल उसको चेंज करता है। अगर एक घर में, एक फैमिली में वालिदैन बड़े पीसफुली रहते हैं, बड़े अमन अमान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ, इज्जत एहतराम के साथ घर का माहौल बड़ा अच्छा है, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वही चीजें होंगी, वो बड़े पीसफुल होंगे, बड़े पुरअमन होंगे, बड़े ही सेटिस्फाइड होंगे, बड़े जहन के जो है वो खुले होंगे। लेकिन अगर दूसरे इसके मुकाबले में घर ऐसा है जहां पे हर वक्त मियां बीवी का क्लैश है, हर वक्त लड़ाइयां हैं, एक दूसरे के साथ झगड़े हैं, ऊंचा बोल बोला जा रहा है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, अब उन बच्चों पर उनके मुख्तलिफ असरात, वो बच्चे जहनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार होंगे, उनका जहन खुला हुआ नहीं होगा, उनके अंदर जो है वो एक अजीब सा मिजाज होगा, चिड़चिड़ापन होगा, वो भी आगे जो है वो दूसरे बहन भाइयों पर, जो बड़ा है छोटे पर, वो शाउट आउट करेगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा। क्यों? उसने यही माहौल देखा, उसने यही माहौल देखा है। तो इसलिए दोस्त हो, वालिदैन हो, बच्चे हो, जैसा माहौल हम प्रोवाइड करेंगे या जैसे माहौल में हम जाएंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। आप चंद दिन अच्छे माहौल में जाते हैं, आपका शुमार अच्छे लोगों में होगा, आप चंद दिन गलत सोसाइटी में जाते हैं, गलत माहौल में जाते हैं, आपका गलत तारुफ बन जाएगा, गलत तारुफ बन जाएगा। तो इसलिए हमने अपने माहौल को अच्छा करना है, अपने माहौल को अच्छा करना है, अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा करना है, अपने बच्चों के माहौल को अच्छा करना है, उनकी तालीम के साथ उनके माहौल पर नजर रखनी है, क्योंकि तालीम से कहीं ज्यादा माहौल के अच्छा होना बहुत जरूरी है। मगर में माहौल ऐसी चीज है कि उसकी तालीम, फिर उसके माहौल अगर बिगड़ा हुआ हो तो तालीम उसको फिर सुधारेगी, फिर तालीम नहीं सुधार सकेगी। अगर उसकी तरबियत ना हुई, माहौल अच्छा ना मिला, तो उसकी तालीम फिर उसको नहीं संभाल पाएगी, फिर वहां से निकल जाएगी। तो इसलिए माहौल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ताल्लुक किससे है, दोस्ती किससे है, उठना बैठना किसके साथ है, ज्यादा टाइम किसके साथ गुजर रहा है, ज्यादा किसके साथ बैठा जा रहा है, उसका असर होगा। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दे के समझाया, फरमाया अगर एक बंदा किसी लोहार की दुकान पर बैठता है, लोहार की भट्टी के पास बैठता है, तो उसको अगरचे वो कोई नुकसान ना भी हो, पहले तो खतरा है कि कभी उसको नुकसान पहुंचे, कोई चिंगारी उड़े, उसके कपड़ों पर गिरे, कपड़ा जल जाए, उसको आग लग जाए, ये उसका खदशा है। नंबर 2, अगर कोई नुकसान ना भी हो, लेकिन ये जब बैठेगा आग के पास, भट्टी के पास, तो इतना तो असर जरूर होगा कि उस धुएं से, उस आग से इसके जिस्म में धुआं शरायत करेगा और उसके अंदर से बू आना शुरू हो जाएगी, बू आना शुरू हो जाएगी। जैसे गर्मियों में बाज़ लोग वो कॉइल लगाते हैं मच्छर के लिए, अब वो अगर ज्यादा उसके करीब होते हैं या इसी तरह धुआं करते हैं तो कपड़ों में से धुएं की स्मेल आना शुरू हो जाती है, धुएं की स्मेल। तो फरमाया अगर कोई ज्यादा उसके पास बैठेगा तो वैसे स्मेल आना शुरू हो जाएगी, अदना सा नुकसान तो उसका यह है ही। इसके मुकाबिल अगर कोई बंदा खुशबू वाले के पास बैठेगा, खुशबू वाले के पास जब बैठेगा तो जाहिर सी बात है वो खरीदेगा भी सही, अगर बिलफर्ज खरीदे ना, हो सकता है उसको खुशबू वो गिफ्ट कर दे, अगर ये भी ना हो तो कम से कम इतना तो है जितनी देर उसके पास बैठेगा खुशबू लेता रहेगा, और जब निकलेगा तो खुशबू लेकर ही निकलेगा। तो ये असर होता है
माहौल का कि आप अच्छे माहौल में, बुरे माहौल में, जिस माहौल में भी जाते हैं उसका असर जरूर लेकर के आते हैं, उसका असर जरूर लेकर के आते हैं। तो इसलिए अपने माहौल को, अपने ताल्लुकात को, अपनी दोस्तियों को देखना, उनको बार बार जांचना, कहीं ऐसा दुनियावी लिहाज से भी, ये नहीं सिर्फ दीनी, दुनियावी लिहाज से भी हम देखें कि हमारा ऐसा दोस्त नहीं है जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। एक है आपका दोस्त, मिसाल आप कारोबार करते हैं, आपका दोस्त कारोबारी है, आप कारोबार डिस्कस करते हैं, आपको कोई ना कोई आइडिया आता है, कोई ना कोई, जाहिर सी बात है दो बंदे हैं, एक के पास एक आइडिया है, दो के पास, दूसरे के पास दूसरा आइडिया है, तो दोनों को जब एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो दोनों के पास दो दो आइडिया हो जाएंगे, दो दो कोई फायदा हुआ, वो फायदा तो बिजनेस के मुतालिक बात करेंगे, फायदा होगा तो मोटिवेशन मिलेगी, अगर उसका ज्यादा काम होगा ये भी कोशिश करेगा मैं भी बढ़ूं, मैं भी बढ़ूं। लेकिन अगर एक बंदे का ताल्लुक ऐसे के साथ है जो बिल्कुल फारिग है, जो बिल्कुल कामचोर है, बिल्कुल फारिग है, कुछ नहीं करता, बस बैठ के टाइम गुजार दिया और आराम से सुकून माहौल चिल कर लिया, अगर उसके साथ बैठेगा या तो वो काम करना शुरू कर देगा इसकी बातें सुन सुनकर, या ये उसकी बातें सुन सुनकर फारिग हो जाएगा, लेकिन असर जरूर लेगा, कोई ना कोई असर जरूर लेगा। तो इसलिए मेहनती के पास बैठेंगे मेहनत सीखेंगे, कामचोर के पास बैठेंगे कामचोर सीखें, कामचोरी सीखी जाएगी। वो बंदा मेहनती है, वो अपनी मेहनत का जिक्र करेगा तो इसको भी जज्बा आएगा कि मैं भी मेहनत करूं, मैं भी फायदा हासिल करूं, ये कमा रहा है मैं भी कमाऊं, इसके अंदर वो जज्बा पैदा हो। इसी तरह दीन के लिहाज से अगर आप नमाजी हैं और आपका दोस्त भी नमाजी है, आपका दोस्त भी नमाजी है, तब तो आपको फायदा होगा, आप भी अपनी नमाज का डिस्कस करेंगे, वो भी नमाज का डिस्कस करेगा, फराइज का डिस्कस करेंगे, अल्लाह आपको सुन्नतों की तौफीक देगा, सुन्नत का जिक्र करेंगे, अल्लाह आपको नवाफिल की तौफीक देगा, नवाफिल का करेंगे, अल्लाह आपको तहज्जुद की, इशराक की, बाकी चीजों की तौफीक अता फरमाएंगे, कुरान की तौफीक अता फरमाएंगे, जब दो नमाजी आपस में मिले। और अगर आप नमाजी हैं, आपका दोस्त बेनमाजी है, अब फिर वही दो सूरतें हैं, या तो आपके अंदर इतनी अट्रैक्शन है, आप उसको दावत देते रहते हैं, दावत देते रहते हैं, तो तब तो वो भी नमाजी बन जाएगा। और अगर आप वैसे ही उसके साथ बैठते हैं टाइम पास के लिए, फिर एक वक्त आएगा कि आप भी सिर्फ टाइम पास ही बन जाएंगे, असर जरूर होगा, असर जरूर होगा। तो इसलिए देखना यह है, इसलिए आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ अला दीनी खलीलिही, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो तुम में से जो किसी के साथ दोस्ती करे, फ्रेंडशिप करना चाहे, तो उसको देख ले, देख के दोस्ती करे कि किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। आजकल डिजिटल दौर है, आजकल ज्यादा दोस्तियां, ज्यादा फ्रेंडशिप फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पे है, दीगर जो सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं उनके साथ है। अब वहां पर भी ये सूरत हाल है कि आप किसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अगर आप किसी टिकटॉकर को, किसी बेहुदा आदमी को भेजते हो, वैसी बात है, फिर आपके पास वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, आपके पास वही रील्स आएंगी, वही चीजें आएंगी, वही वीडियो आएगी, जो नाच गाना वो सुनेगा वही आपको शो होगा, जो अला बला वो सुनेगा वही आपको शो होगा। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जो दीनदार है, जो नेक है, या जो कारोबारी है, या जो दुनिया के लिहाज से कुछ कर रहा है, तो आपके साथ भी वही क्या होगा, फिर आगे आपके जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप होगी वो भी वैसी होगी। जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे वैसे वैसे ग्रुप जो है वो डेवलप होते जाएंगे। तो आजकल भी ऐसा ही है, आप जिसको जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे वैसा ही कंटेंट आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह जाहिरी तौर पर दोस्ती हो या सोशल मीडिया पे दोस्ती हो, रिजल्ट फिर या तो यह है कि आप अपने आप से उसको इंस्पायर करेंगे, या यह है कि वो आपको इंस्पायर करेगा, या आप उसको खींचेंगे या वो आपको खींचेगा। रिजल्ट कोई ना कोई आना है, सोहबत का असर जरूर होना है। तो इसलिए या तो आप में इतना पोटेंशियल हो, आप इतनी आपके अंदर एनर्जी हो कि आप किसी को पकड़ के उसको राह रास्त पर ला सकते हैं, तो फिर तो बहुत वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है कि उसको आप राह रास्त पर लाएं, किसी तरीके से उसको अपने साथ एंगेज करें, उसको अपने साथ जो है वो दीन की तरफ लाएं, अपने साथ उसको किसी काम पे लाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप में इतना पोटेंशियल नहीं है, फिर क्या होगा, फिर नुकसान ही होगा कि फिर आप नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आप सलाम ने फरमाया फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि जिससे आपने फ्रेंडशिप करनी है पहले देख लेना वो कैसा है,
कहीं ऐसा ना हो आपकी दीन और दुनिया का नुकसान कर दे, बजाय आपके फायदे के आपका नुकसान कर दे, बजाय आपकी कामयाबी के आपको नाकाम कर दे, बजाय आपकी अच्छी शोहरत के आपकी गलत शोहरत बना दे। आपका अच्छा तारुफ था, आपका गलत तारुफ हो जाए, गलत तारुफ हो जाए। और जो अच्छे के साथ होता है उसको उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। अच्छे के साथ दुनिया में हम देखते हैं, अगर कोई किसी पावरफुल बंदे के साथ किसी की दोस्ती है, चार लोगों को पता है इसकी फलां ऊंचे बंदे के साथ दोस्ती है, तो हर एक को बताता है इसके फलां के साथ ताल्लुक है, फलां के साथ ताल्लुक है। अब उससे कोई लड़ाई भी नहीं करेगा, उससे कोई पंगा भी नहीं लेगा, कोई तंग भी नहीं करेगा, कोई नुकसान भी नहीं करेगा। क्यों जी? इसकी फलां के साथ दोस्ती है, फलां के साथ उठना बैठना है, फलां इसके फ्रेंड जो है वो फ्रेंड सर्कल में है, फलां इसका दोस्त है, ऊंचा बंदा है, लिहाजा इसको कोई नहीं छेड़ेगा, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई तकलीफ नहीं देगा, कोई इसका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। इसी तरह से अगर आपका ताल्लुक किसी नेक आदमी से है, किसी आलिम के साथ है, किसी अल्लाह वाले के साथ है, किसी अल्लाह के नेक बंदे के साथ है, तो शैतान भी ऐसे ही फिर आपकी तरफ इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा। क्यों? कि मेरे वारिस पर जल्दी नहीं चलेंगे, वो आपको तकलीफ नहीं दे सकता, आपको वसवसे नहीं दे सकता, आपको नेकी से नहीं रोक सकता, आपको बहका नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि इसका ताल्लुक फलां अल्लाह वाले से है, इसका ताल्लुक फलां अल्लाह के नेक बंदे से है, इसका ताल्लुक फलां जो है वो आलिम से है, लिहाजा ये मेरी बातों में जल्दी आने वाला नहीं है, मैं इसको जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये असर होता है आपके ताल्लुक का, आपकी दोस्ती का। इसलिए प्यारे पैगंबर ने फरमाया, देख लेना, अपना ताल्लुक बनाते हुए देख लेना। सूरह साफात में 23वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले जन्नत का तज़किरा किया कि जन्नती लोग ऐसे ऐसे बैठे होंगे, युताफ़ु अलैहिम बिकासिम मिन माइन बैज़ा लज़्ज़तिल लिशारिबिन ला फीहा ग़ुलुन। एक पूरी चंद आयात है कि वो आपस में बैठे होंगे और फिर वो आपस में ऐसे आमने सामने जो है वो बैठे होंगे, गपशप कर रहे होंगे, अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, आमने सामने ऐसे बैठ के गपशप, तो उनकी बातें चल रही होंगी। दरमियान में एक आदमी डिस्कस करेगा कि यार दुनिया में मेरा एक दोस्त था, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीन यक़ूलु इन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून। कि यार दुनिया में मेरा एक दोस्त था, जब मैं उसे ईमान की बातें करता था ना, तो वो मुझसे कहता था यक़ूलु इन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, कि आप भी ऐसी चीजों पर बिलीव करते हो, आप भी ईमान रखते हो कि मरने के बाद उठना है, मरने के बाद जिंदा होना है, हिसाब किताब होना है। यानी कि वो इन बातों को ऐसे ही समझता था कि कोई मरने के बाद उठना नहीं है। वैसे आजकल भी लोग करते हैं, दोस्तों में आपस में बातें होती हैं, यार आप भी मौलवियों को, आप भी मौलवी हो, आप नमाजें पढ़ते हो, आप ऐसे करते हो, आप भी ये करते हो। इस्तेहज़ा के साथ ऐसे करते हैं लोग, हकीर समझते हैं, यार आप भी उन चीजों पर बिलीव करते हो। तो कहते वो ऐसे मुझे कहा करता था, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून, कहते वो मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, फिर हमें कोई जज़ा सजा मिलेगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो मुझ पे ताज्जुब करता था। यार मैं तुम्हें उसकी हालत दिखाना चाहता हूं कि आज जन्नतियों में तो वो है नहीं, यकीनी बात है जब ईमान नहीं लाया तो जहन्नमियों में होगा। वो क्या होगा? जहन्नमियों में होगा। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीन यक़ूलु इन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून। ये सारी उसकी स्टोरी अल्लाह ने बयान की। अब वो कहेगा, हल अंतुम मुत्तलिऊन, तुम उसे देखना चाहते हो, तुम उसे देखना चाहते हो। फत्तला फरआहु फी सवाइल जहीम, फिर उनको ले जाएगा, फिर जहन्नम के नीचे तह में दिखाएगा, उसको वहां पे वो नजर आएगा, वहां पे नजर आएगा। और फिर वो कहेगा, तल्लाहि इन कित्ता लतुरदीन वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन। अल्लाह की कसम, अगर थोड़ी देर में इसके साथ और फ्रेंडशिप में रहता और दोस्ती में रहता, इसके साथ ताल्लुक रखता, तो अल्लाह की कसम मैं भी हलाक होने वालों में हो जाता, मेरी भी हलाकत पक्की थी, मैं भी जहन्नम में होता। वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन, अगर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह की नेमत ना होती, तो आज मेरा ठिकाना भी जहन्नम होता, मेरा ठिकाना भी जहन्नम होता। तो ये सोहबत, ये दोस्ती आपकी देखे कहीं दुनिया का नुकसान तो नहीं कर रही, नंबर 2 आपके दीन का, बल्कि सबसे पहले आपके दीन का नुकसान तो नहीं कर रही, नंबर 2 आपके दुनिया का नुकसान। तो अगर आपके दीन दुनिया का नुकसान हो रहा है किसी की दोस्ती से, तो बस रुक जाएं और अपनी दोस्ती पर नजरसानी करें, अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करें। या तो बदलाव लाएं, या ये है कि अपनी राहें जुदा करें। और इसी तरह से 19वें पारे में
सूरह शुआरा में एक और नक्शा खींचा है कुरान करीम ने, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदी यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन खलीला, कि क़यामत के दिन एक आदमी होगा जो अपने बाजू को काट रहा होगा, ऐसे जो है वो काट रहा होगा, खा रहा होगा, चक्कियां काट रहा होगा, ऐसे जिस तरह बाइट लगाते हैं ऐसे वो अपने बाजू को, और कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश कि मैं रसूल के साथ दोस्ती कर लेता, नबियों की बात को मान लेता, या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन खलीला, काश कि मैं रसूलों के मुकाबले में कुफ़ार के साथ दोस्ती ना करता, काश कि मैं ऐसा ना करता। लेकिन उस वक्त उसकी काश और हाय वाय और अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा। आज टाइम है, आज अपने ताल्लुकात देखें, अपने ताल्लुकात देखें, हमारा उठना बैठना किसके साथ है, कल को हमारा तारुफ कैसा होगा, कल को हमारा तारुफ कैसा होगा, हम किसके साथी होंगे, आज हम देखें, अपने आप में नजर दौड़ाएं, हमारा शुमार किन लोगों में होगा, हमारे दोस्त कौन लोग होंगे। हम आखिरत में दो गिरोह होंगे, या तो एक गिरोह जन्नत की तरफ जाएगा या एक गिरोह जहन्नम की तरफ जाएगा। मेरी दोस्ती, मुझे, मेरा ताल्लुक मुझे कहां लेकर के जा रहे हैं, ये आज हमने गौर करना है, आज हमने गौर करना है। कहीं मेरा दोस्त मुझे दीन में सुस्त तो नहीं कर रहा, मुझे दीन में गाफिल तो नहीं कर रहा, मेरी नमाज के टाइम पे रोड़े तो नहीं अटका रहा, कहीं मेरा जो है वो दोस्त मेरी नमाज में रोड़े तो नहीं अटका रहा, मेरे दीन में रोड़े तो नहीं अटका रहा, मुझे नमाज से तो नहीं रोक रहा, कहीं मेरे रिश्तेदार, कहीं मेरे दोस्त अहबाब ये मुझे मेरे दीन में रुकावटें तो नहीं डाल रहे, मुझे हकीर तो नहीं समझ रहे। अगर ऐसा है तो महदूद हो जाए, लिमिटेड हो जाए उनके साथ कि भाई मेरी राहें जुदा हैं, आपकी राहें जुदा हैं, आपके ताने मुझे मेरे दीन से नहीं रोक सकते, आपकी दोस्ती मुझे मेरे दीन से नहीं रोक सकती, आपकी वजह से मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता। दीन किसी की जागीर नहीं है, अगर मैं चलूंगा तो मेरा फायदा होगा, अगर मैं नहीं चलूंगा तो दीन को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे दीन की जरूरत है, मुझे दीन की जरूरत है, मुझे अल्लाह की जरूरत है, मुझे अल्लाह के रसूल की जरूरत है, अल्लाह के रसूल के जो है वो साथ की सोहबत की मुझे जरूरत है। तो जब मुझे जरूरत है तो मैंने चेंज लाना है, मैंने अपनी जिंदगी को बदलना है, मैंने अपने आप को देखना है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला याकुल ताअमका इल्ला तक़ी, कि एक तो आपकी दोस्ती जो है वो किससे होनी चाहिए, नेक आदमी से, और आपका खाना कौन खाए, ला तो साहिब इल्ला मुमिना वला याकुल ताअमका इल्ला तक़ी, आपका जो दोस्त है वो मोमिन होना चाहिए, आपका जो दोस्त है वो मोमिन होना चाहिए, आपका जो खाना है, आपकी मेहमानी जो है वो नेक आदमियों की होनी चाहिए, नेक आदमियों की होनी चाहिए। तो ये देखें सोहबत कितनी बड़ी चीज है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सोहबत में हज़रात सहाबा किराम आए, अल्लाह ने कहां से कहां पहुंचा दिया। वही लोग थे, आम लोग थे, गुनाह, गलतियां, बुतों की पूजा, सारी चीजें उनमें थी, सारी बुराइयां उनमें थी, लेकिन क्या हुआ, फिर प्यारे पैगंबर उन पर हिदायत की रोशनी लेकर, हिदायत के आफताब और महताब बनकर तुले हुए, फिर अल्लाह के पाक पैगंबर की सोहबत उन्हें मिली। फिर उन्हीं लोगों को जिनमें कत्ल क़ताल आम था, जिनमें मारना आम था, जिनमें शराबें आम थी, जिनमें बेटियां जिंदा गरगोर करना आम थी, जब प्यारे पैगंबर के साथ अटैच हुए, प्यारे पैगंबर की सोहबतें उन्होंने ली, फिर यही लोग थे जो एक दूसरे पर फिदा हो रहे थे, एक दूसरे के लिए जान दे रहे थे, एक दूसरे के लिए प्यासे मर रहे थे, एक दूसरे के रिश्तों का ख्याल कर रहे थे, एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल कर रहे थे। फिर यही लोग थे जिनको अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही पक्के ठक्के मोमिन हैं। उलाइका अल्लज़ीना कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान से भर दिया है। उलाइका हुमुर राशिदून, यही हिदायत याफ्ता है। फिर अल्लाह ने उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह से राजी, अल्लाह इनसे राजी। क्या हुआ, नबी की सोहबत में, नबी की सोहबत ने उनको सहाबी बना दिया, और फिर इतना ही नहीं, सहाबा की सोहबत जिन्होंने पाई उनको अल्लाह ने ताबी बना दिया, ताबी बना दिया। और प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, मेरा जमाना भी सबसे बेहतरीन है, और जो मुझसे अटैच है, मिले हुए हैं सहाबा, उनका जमाना भी सबसे बेहतरीन है, और जो फिर उनके साथ अटैच है ताबीन, उनका जमाना भी सबसे बेहतरीन है। सोहबत है, साथ है, या तो साथ आपको अच्छा बनाएगा या साथ आपको बुरा बनाएगा। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ पिसरनु बाबदा बनशिस्त, पिसरनु बाबदा बनशिस्त, खानदाने नबूवतश गुम कर, कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिरों के साथ चंद दिन बैठा, नबूवत के खानदान ने उसको फायदा नहीं दिया, काफिरों के साथ हो गया। सगे असहाब कहफ पर तवे नेका गिरफ्त मर्दम शुद, और असहाब कहफ का कुत्ता नेक लोगों के साथ हुआ, अल्लाह ने उसको आदमियों जैसी इज्जत और तकरीम अता फरमा दी। क्या है सोहबत? जैसे आप सोहबत इख्तियार करेंगे, उलमा के पास बैठेंगे, आपको इल्म मिलेगा, आपको तकवा मिलेगा, आपको जिंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा, आपको अखलाक मिलेंगे, आपको घरेलू जिंदगी का सलीका मिलेगा, आपको नमाज रोजे का पता चलेगा, आपको हज ज़कात का पता चलेगा, आपको मामलात का पता चलेगा। लेकिन अगर आप फारिग लोगों के साथ, वाहियात लोगों के साथ, फजूल लोगों के साथ, जाहिल लोगों के साथ और सोशल मीडिया के साथ जुड़ेंगे, आपको फिर वहां से वही कंटेंट मिलेगा जो चल रहा है। फहाशी मिलेगी, और यानी मिलेगी, बदतमीजी मिलेगी, बेहूदगी मिलेगी, ताने मिलेंगे, जबान दराजी मिलेगी, और ये सारी के सारी जितने भी बदअखलाकी हैं आपको वहां से मिलेगी। तो इसलिए फलयंजुर मयुखालिल, देखना है, नजर सानी करनी है, किन के साथ आपने बैठना है, किन के साथ आपने वक्त गुजारना है। जिनके साथ वक्त गुजारेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। इसी तरह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या है कि पहले जमाने में हम्माम होते थे, और वहां पे जो है वो नहाने में साबुन की जगह आजकल साबुन है, लेकिन उस वक्त साबुन का दौर नहीं था, मिट्टी रखा करते थे। तो शेख सादी कहते हैं, एक दिन मैं नहाने के लिए हम्माम में गया, वहां पे जो मिट्टी थी बड़ी खुशबूदार थी, बड़ी खुशबूदार थी। तो मैंने मिट्टी से कहा, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे बदो गुफ्तम रसीद अज दस्त मखदूमे बदस्तम, कि मिट्टी मैंने लगाई तो बड़ी ऐसी प्यारी मिट्टी थी। तो मैंने उससे कहा, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के अज बुए दिल आवेज तू मस्तम, कि मैंने उससे कहा तो मुश्क है या अबीर है, यानी अंबर है, ये आला किस्म की खुशबू है, कि बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के अज बुए दिल आवेज तू मस्तम, कि तो मुश्क है या अंबर है, कि तेरी खुशबू से मेरा दिल जो है वो खुश हो गया है, बड़ी प्यारी खुशबू है तेरी। तो उसने क्या कहा, बगुफ्ता मन दिले ना चीज बूदम वलाकिन मुद्दते बागुल शिस्तम, उसने कहा मैं खुशबू नहीं हूं, न मैं तो फूल हूं, लेकिन मैं थोड़ी देर फूलों के साथ रही हूं, थोड़ी देर है फूलों के साथ रही हूं। जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, मेरे अंदर तो मेरे हम नशी ने असर कर दिया है, गुलाब के साथ रही हूं, गुलाब की खुशबू मेरे अंदर आ गई है, वगरना मैं तो एक मिट्टी ही हूं, मैं तो क्या हूं, एक मिट्टी हूं। तो इसलिए जैसी सोहबत होगी, सोहबत की वजह से आपकी कीमत बढ़ेगी, आपकी कदर बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका एहतराम बढ़ेगा, और उसी सोहबत की वजह से आप जलील भी हो सकते हैं, रुसवा भी हो सकते हैं, बदनाम भी हो सकते हैं। मैटर करता है कि सोहबत कैसी है, सोहबत है कैसी है। मिसाल गंदम है, गंदम आजकल गंदम का सीजन है, बारिश आई, बाजे दाने बीच में काले हो गए, उनको काई लग गई, लेकिन जब आप एक बोरी, एक तोड़ा, एक गट्टू भरते हैं, उसमें काले दाने 100 भी चले जाए तो वो गंदम के रेट में चले जाएंगे, गंदम के रेट में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अलग से काले दानों को इकट्ठा करके बेचेंगे, उनकी एक जीरो भी रेट नहीं लगेगा, जीरो भी कीमत है नहीं लगेगी। तो ये क्या है, सोहबत की वजह से आपकी कीमत बढ़ सकती है, आपकी इज्जत बढ़ सकती है, आपका एहतराम बढ़ सकता है। तो इसलिए गौर करें कि हमारी सोहबत कैसी है। आया हम उलमा के साथ हैं, या हम जो है वो आजकल के जो बेहुदा किस्म के लोग हैं, हम किन को चाहते हैं, हमारे जो सोसाइटी है, हमारे पड़ोसी हैं, वो कैसे हैं, वो नेक है या बद है। अगर नेक है तो हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए, मजीद जुड़ना चाहिए, अगर बद है हमें उनसे हटना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का छोटा सा वाकया, एक यहूदियन का पड़ोसी था, मकान सेल कर रहा था, किसी ने पूछा क्या मांगते हो, डिमांड क्या है, उन्होंने कहा 2000 दिरहम, उन्होंने कहा इस लोकेशन पे तो 1000 दिरहम का मिलता है मकान, आप ज्यादा मांग रहे हो। उन्होंने कहा 1000 तो मेरे मकान ही का है, लेकिन 1000 अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पड़ोस का है, पड़ोस की कीमत है, सोहबत की कीमत है। तो इसलिए कोशिश करें अपनी सोहबत को अच्छा रखें, उलमा के साथ अटैच रहे, अहलुल्लाह के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ, नेक बंदों के साथ। अगर चाहते हैं दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो, उलमा से पूछ पूछ कर अपनी जिंदगी गुजारे, उलमा से कुरान सीखे, मसाइल सीखे, नमाजें सीखे, रोजे सीखे, अपनी जिंदगी के मामला सीखे। क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी रसूलुल्लाह की जिंदगी पर, दुनिया के अंदर भी हम आएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। और इसी तरह से आखिरी बात, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। कॉलेज में भेजते हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं पढ़ने के लिए, बड़ा ही शरारती, बड़ा ही जिसे कह लें बेहुदा दौर है, बच्चे खराब हो रहे हैं,
नशे पे लोग लगा रहे हैं और हमारा जो है वो नाच गाने पे लग रहा है और हमारी फहाशी जो है, आप ये कभी भी एक्सपेक्ट ना करना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा है या यूनिवर्सिटी के जो मालिकान है वो आपके बच्चों को बड़ा ही कोई तरबियत के प्रोसेस से गुजार के आपके हाथ में देंगे। वल्लाह कतन ऐसा नहीं होगा। न वो तालीम देंगे न तरबियत देंगे। हाँ, 1 लाखों की डिग्री आपके हाथ में दे देंगे, अब जिधर लेके जाना बच्चा ले जाए। तरबियत आपने करनी है, बच्चे पर नजर आपने रखनी है, उसको जो खिलाना है खिलाएं, जो पिलाना है पिलाएं, लेकिन अल्लाह जानता है आप उनकी निगरानी जरूर करें। निगरानी वगरना कल को फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे। आपके हाथ से बड़े बड़े एजुकेटेड बच्चे हैं, लेकिन वो क्या है, अब वो आजकल तो उनको जो है उनकी जींस तब्दील करवाने पे तुले हुए हैं। प्रोग्राम हो रहे हैं बाकायदा। आजकल अमेरिका का एक पूरा डेलीगेशन, एक वफद और म्यूजिशियन का एक पूरा ग्रुप आया हुआ है जो बच्चों में और खासकर फीमेल बच्चियों के अंदर जो है वो नाच गाने और LGBT उसको प्रमोट करने के लिए आया हुआ है। उनके ज़हन बना रहे हैं, क्योंकि यूरोप में तो ये चल रहा है कि जिसका जी चाहे वो जो है वो ट्रांसजेंडर बन जाए, जिसका जी चाहे जो मर्जी बन जाए। अजीब अजीब हरकतें हो रही है, तो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। हमने काफिरों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमने ईमान वालों की जिंदगी गुजारनी है। हमारे आइडियल काफिर नहीं है, मेरे आइडियल प्यारे पैगंबर हैं, उनके सहाबा हैं। अगर काफिरों के पीछे चलेंगे एक दिन आपको जानवरों से भी बदतर बना देंगे, बल्कि बना चुके हैं। अब तो ये आगे अंग्रेज पीछे दुमे लगवाना शुरू कर दिए, पीछे दुमे लगवाना शुरू कर दिए, तो कुत्ता बन गया है, किसी ने गले में पट्टा डाल लिया है, आपको जानवरों से भी ज्यादा रुसवा कर देंगे। तो इसलिए खुदारा अपनी सोहबत का भी ख्याल रखें, अपने फ्रेंड सर्कल का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों की भी जो है वो तरबियत के लिए उनके फ्रेंड सर्कल का भी ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।